A very good morning to all the students and everyone who are watching my videos and lectures. And this is Brijesh Singh, and I'm going to discuss with you Financial Accounting Unit 3rd. So, welcomes to all. And the topic is distinction between income and expenditure account and the receipts and payment account. And also, I discuss one numerical problem with you in that particular sessions. So, let's start. So, this is a distinction. So first of all, the distinction between income and expenditure account and receipts and payment account basically based upon the discussion regarding the receipts and payment account and income and expenditure account. So the account we make the distinction between income, expenditure, and receipts and payment is as. So first thing, basis of differences. The first one in nature, receipts and payment account, then income and expenditure account. So nature of the receipts and payment, it is summary of the cash book. Whereas the income and expenditure account, it is a summary of revenue and income and revenue expenditure. ठीक है, तो जनरली revenue expenditure और revenue incomes की summary होती है, जबकि कैश जो receipts and payment account है वो कैश बुक की summary. Second thing, the side की अगर हम बात करें, debit side of this account show the receipts and credit side show the payment. तो receipts and payment account में हम नाम receipts and payment होते हैं, but जो debit side है वो रिसीप्ट्स को प्रेजेंट करता है, क्रेडिट साइड जो है वो पेमेंट को प्रेजेंट करता है. लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट शो द एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट इज शोज द इनकम एंड गेन्स. तो ये आपका यहाँ डिफरेंसेस है, दोनों की साइड के डिफरेंसेस है. थर्ड थिंग है ओपनिंग बैलेंसेस की अगर हम बात करें तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड द एंड इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ cash in hand and as cash at bank, but whereas in the when we prepare the income and expenditure account, there is no balance in the beginning and the things. Then closing balance, the fourth thing is the closing balance of this account show the cash in hand or cash at bank, the in receipt and payment account, but in the income and expenditure account there is no closing balance, and this account show the surplus or deficit. तो यहाँ केवल surplus and deficit show किया जाता है. Means the when the incomes is excess over the expenditure, then it comes surplus, and if the expenditure is over the excess over the income, then it is deficit. Then the fifth is capital and revenue items की अगर हम बात करें तो in receipts and payment account both the capital and revenue nature of items are recorded. receipts ठीक है, दोनों तरह के चाहे वो कैपिटल नेचर के हों या रेवेन्यू नेचर के हों, वो दोनों तरह के आइटम्स और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में प्रेजेंट किए जाते हैं. वेयरएज in income and expenditure account, the income of expenditure account only revenue expenditure kind of natures are transaction are recorded in that particular income and expenditure account. Then adjustment की अगर हम बात करें तो adjustment are not considered in while preparing it. जब भी हम receipts and payment account बनाते हैं तो adjustment की कोई जरूरत नहीं होती है, होते हैं तो उनको शो नहीं करते, but in income and expenditure account it is necessary to consider the adjustments while preparing it. जब भी हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो इसको कंसीडर किया जाएगा. Then 7 ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ही फॉर द नेक्स्ट ईयर या पीरियड के लिए इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है. Whereas इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है बेसिकली देयर इज नो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, बट द सरप्लस एंड डेफिसिट इज आल्सो देयर. तो surplus and deficit transfer to the capital fund generated general fund in the balance sheet. या तो कैपिटल फंड के नाम से या जनरल फंड के नाम से जो भी होता है बैलेंस शीट में उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इसलिए इसका कोई रिकॉर्ड जो है अगले साल में कोई जो है आगे को नहीं भेजा जाता है. तो इस तरीके से जो है डिफरेंसेस को आप यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको मिल सकता है एग्जाम में. ठीक है, then let's take another example. Example with the illustration. This is also taken from the book which I consider and refers to you, and from the following receipts and payment account for the ended year 31st March 2015. Nagy's Club prepare income and expenditure account for the same period. So receipts and payment account is this ending 31st March. First of all आप देख रहे हैं expenditure और इधर income. सॉरी, यहाँ पर हम रिसीप्ट्स होंगे, यहाँ पर पेमेंट्स होंगे. रिसीप्ट्स एंड पेमेंट एक बाई मिस्टेक जो है जो एक्सपेंडिचर और इनकम लिखा गया है. तो आप यहाँ देख रहे हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स की बात कर रहे हैं. तो बैलेंस है आपका बैलेंस सब्सक्रिप्शन 14, 15 एंड 16 तीनों साल का, यानी पास्ट, करंट और प्रीवियस का. पास्ट है 1500, करंट है आपका
10,000 और प्रीवियस फ्यूचर का है 500 रुपीज। डोनेशन है आपका 2,000, राउंड रेंट है, हॉल का रेंट है 300 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आपको मिला है 4,450 एंट्रेंस फी। तो इनमें से जो चीजें हैं वो आपकी इनकम्स क्या है, जैसे कि आपका सब्सक्रिप्शन है वो इनकम कहलाता है, तो 1,200 रुपीज है, लेकिन एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं कि करंट ईयर का जनरली इनकम्स में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, हॉल का रेंट है वो इनकम है ना, डोनेशन है वो इनकम है, एंट्रेंस भी आपकी इनकम है, इनको लिखेंगे। अब इधर के हैं एक्सपेंडिचर्स आपके हैं, सॉरी रिसीव पेमेंट्स आपके हैं। तो परचेज ऑफ फर्नीचर आपने किया है 1 जुलाई 14 को, अपने पर खरीदा 5,000 का। सैलरी आपने किया तो सैलरी एक्सपेंडिचर, टेलीफोन एक्सपेंस एक्सपेंडिचर है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर है, पोस्टल स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ बुक्स जो है एसेट्स है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं, परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स हैं, ये आपके इन्वेस्टमेंट है इसलिए एक्सपेंसेस हैं। तो जो एक्सपेंसेस के नाम से है जनरली, जो इन्वेस्टमेंट नहीं है या असेट्स नहीं है, तो उनको हम यहाँ पर देन बैलेंस आपको दिया हुआ कैश और बैंक का, तो ये आता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपीज, सैलरी कितनी है 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग, यानी अभी देनी बाकी है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट व्हेन वी प्रिपेयर। देन एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 500, तो जो भी आउटस्टैंडिंग्स हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है 900 या 500 आउटस्टैंडिंग तो प्लस हो जाएंगे। बैंक इंटरेस्ट है 1,550 रुपीज। बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल यानी अभी रिसीव नहीं हुआ है। सब्सक्रिप्शन अकर्ड रहे आपका 400, 50% ऑफ द इंटरेस्ट फी इज टू बी कैपिटलाइज, जो इंटरेस्ट फी है वो 50% है, वो कैपिटलाइज्ड है, उसको कैपिटलाइज फॉर्म में डालना है। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड 10% पर एनम, ठीक है। तो इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हो, देन वी प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने प्रिपेयर किया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऊपर लिखना है टॉप में, बुक ऑफ नेगीज क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2015। फिर इधर डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखने हैं और क्रेडिट साइड में इनकम लिखने हैं। इस तरीके से फॉर्मेट है आप इसमें बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी जो सैलरी कितनी है आपकी 2,000 रुपीज, इससे रिलेटेड आपकी जो आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है 1,500 रुपीज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सैलरीज एड आउटस्टैंडिंग 1,500, देन इसको कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 3,500 रुपीज। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं जैसे कि टेलीफोन चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जिसमें कोई आपका एडजस्टमेंट नहीं है उनको हम लिख देंगे। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये तीनों आपके बिना किसी एडजस्टमेंट के हैं। तो टेलीफोन चार्ज है 300, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 600, स्टेशनरी 150 रुपीज। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है 900 रुपीज, इसमें भी आउटस्टैंडिंग है, ये आपकी जो दी गई है इसमें एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 500 रुपीज। तो 500 रुपीज जो है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग कर देंगे, तो कुल मिलाकर 1,400 रुपीज आपके बाहर है। देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600 रुपीज। देन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये भी एक्सपेंडिचर होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड 10% पर एनम, तो डेप्रिसिएशन आप दिखा देंगे यहाँ पर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो इट इज 10% निकालने फर्नीचर का। फर्नीचर कितने का है आपका, यहाँ पर दिया गया है फर्नीचर 5,000 रुपए का है, ठीक है 5,000। लेकिन कब खरीदा आपने, जुलाई में खरीदा है। जुलाई से लेके आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का। तो अगर 10% निकालें तो 500 रुपये बनता है 1 साल का, लेकिन 9 महीने का तो 9/12 आप करेंगे, देन वी गेट द 375 रुपीज, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इनकम साइड को करना है। इनकम साइड में सबसे पहले आपने क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकम है, सब्सक्रिप्शन आपका दिया है, डोनेशन, हॉल रेंट ये आपको दिया, और फी इंट्रेंस फी में आपका कुछ इसमें दिया है। इंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज, 50% इंट्रेंस फी जो है कैपिटलाइज है। सब्सक्रिप्शन 400 आपका जो है वो अकर्ड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन आपने लिखा 10,400, तो 10,000 वो था और 400 आपने जो अकर्ड था वो यहाँ पर ऐड कर दिया। डोनेशन 2,000, एंट्रेंस फी 50%, क्योंकि एंट्रेंस फी कितनी है आपकी 1,000 है, तो 50% आपकी कैपिटलाइज करनी है, बाकी आपकी रेवेन्यू से रहेगी। तो जो आइटम है वो यहाँ आ जाएगा। बैंक इंटरेस्ट है 450, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। ये बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल 150 आउटस्टैंडिंग है, तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट 150, तो यहाँ कुल मिलाकर 600। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 200 रुपीज, ऑलरेडी आपका दिया हुआ था इंटरेस्ट है ना। तो ये आपका ये इन्वेस्टमेंट है, परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 8,000 रुपीज की, 5% है। तो यहाँ पर 5%, 8×5 = 40 जो है आपका हो जाता है, लेकिन जुलाई में खरीदा 9 महीने का आप निकाल लेंगे इसको, तो ये 200 रुपीज आपको जो भी है वो मिल जाएगा। हॉल का रेंट है आपका 300 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक का जो इंटरेस्ट है 450, कहाँ पर लिखा हुआ है बैंक इंटरेस्ट, कहीं लिखा होगा इसमें बैंक 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 बैंक
बैंक बैलेंस दिया है, बैंक इंटरेस्ट, इसमें बैंक इंटरेस्ट इज इक्वल 150 दिया हुआ है, ऑलरेडी दे रखा है। और जो बाकी जो बैंक का है वो यहाँ पर हम देख लेंगे कितना बनेगा, तो इसके हिसाब से 5% के हिसाब से इसको निकाल लेंगे, तो इसमें हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये है बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 450 आपको दिया हुआ है इनकम्स। ठीक है, इनकम्स में तो इसलिए यहाँ पर हम रिसीप्ट में दिया है, तो 450 प्लस 150 आप कर देंगे। 450 प्लस 150 आपने 600। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट क्या है? परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली जो 5% है ये कब खरीदा है? 14 में खरीदा है, 1 जुलाई 14 को आपने खरीदा है। तो 1 जुलाई 14, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो 1 अप्रैल 14 से चल रहा है, तो 9 मंथ्स का है। तो 8000 का 5% कितना हुआ? 840, 400 रुपये करीब बनता है ना। तो फिर बाकी जब हम इसको कैलकुलेट करके निकाल देंगे, तो आपका जो है 200 रुपीज़ आपका मिल जाएगा। रेंट हॉल जो है वो 300 रुपीज़ है, रेंट हॉल यहाँ पर दिया हुआ है, रेंट हॉल 300 रुपीज़, तो इट विल बी 300 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गया। देन वी सम अप ऑल दिस थिंग्स, सम कर देंगे इनका। तो 10,000 इनको 4 + 5, 9 + 6, 15 + 2, 17 + 3, 10, 20 2, 0 to carry 2 + 2 4, 14, 1 का 1, 14,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 14,000 आपका इनकम्स का टोटल हुआ। देन अब इनका हम टोटल कर लेंगे 3,500 से लेके यहाँ तक जो भी अमाउंट है, इनको प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो ये आप कर सकते हैं 0 0 0 5 + 5 आपका 0 हो गया, 1 कैरी, 1 5 6 6 6 6 7, 13 + 7 20, 2 2 कैरी, 2 + 5 7 + 3 10 + 6 16 + 1 17, and 4 21 + 27 3 30 30 का 0 3 कैरी, 3 3 6 + 1 7 7 + 7 14, तो 7,075 रुपीज़ जो है वो सरप्लस आपको मिलेगा। यहाँ पर क्या है आपका 7,000, ये 17 जो है वो सरप्लस आपको मिलेगा। तो सरप्लस कब आता है? व्हेन द इनकम इज, लिखा है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जब भी इनकम साइड एक्सेस करेगी एक्सपेंडिचर से, तब तक जो है वो आपका हम जो है उसको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर शो करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, देन वी गेट द सरप्लस, तो सरप्लस आपको मिल जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस थिंग। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, आई होप। So let's start another thing in lecture. Thank you very much.